Now we have to go to another subject. हम एक दूसरे विषय की ओर बढ़ेंगे Tonight we are going to look at one very particular passage. और आज हम एक विशेष भाग को We are what we are because of the grace of God. हम जो भी हैं, जो कुछ भी हैं, केवल उसके अनुग्रह से ही है। Because if God, we are there because God saved us. क्योंकि हम वहां पर बैठे हैं क्योंकि उसने हमें बचा लिया है। If we could sing, it is His grace. अगर हम गा लेते हैं, ये भी उसका If we अनुग्रह है। could preach, it is His grace. अगर हम प्रचार करते हैं, If वो God भी has उसका given us other talents, it is grace. और कोई भी दूसरा हुनर प्रभु ने दिया है, वो भी It अनुग्रह is है। all grace. हालेलुया, ये सब कुछ अनुग्रह अनुग्रह। You remember the story of Ruth. आपको रूथ के बारे में कहानी मालूम है? Ruth was a Moabite woman. वो एक मोआब की स्त्री थी। She came with her mother-in-law Naomi to Bethlehem. बैतलहम में अपनी सास नओमी के साथ में प्रवेश She किया। was a stranger. वो एक परदेशी है। But you know, she by the grace of God परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा came to the field of Boaz. बोआज के खेत की ओर प्रभु के अनुग्रह से आ गई। You know, Boaz was a very good man. बोआज तो बहुत अच्छा भला व्यक्ति था। It is the grace of God. ये प्रभु का अनुग्रह है। So we must always remember. हम हमेशा इस बात को याद Now रखें। we will never become proud. हम कभी भी हम गर्व हमारे अंदर ना हो। And we will be kind to others. हम दूसरों के प्रति तरस से कर। When we remember that it is all God's grace. हम जब याद करते हैं कि सब कुछ प्रभु तेरा अनुग्रह है। Remember the story of Esther, आपको एस्तर की कहानी याद होगी? an orphan girl. एक अनाथ She बालिका, became a queen, वो एक रानी बन गई। which could never happen. वो कभी संभव नहीं था। God's grace lifted her. परमेश्वर के अनुग्रह ने उसको ऊंचा उठाया। So she must never think I am here because of my beauty. उसको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि केवल अपनी खूबसूरती से मैं वहां पहुंची। It is God's wonderful grace. हालेलुया, ये परमेश्वर का एक अद्भुत अनुग्रह था। As believers, हम विश्वासियों के we होने must के नाते always remember. हम हमेशा इस बात को याद रखें। You know, there was a great preacher called D.L. Moody. D.L. मूडी नाम के एक महान He प्रचारक, was a wonderful servant of God. बहुत अच्छे प्रभु के दास थे। And he was walking on a road. एक बार एक रास्ते से चल रहे थे। And in front of him, another man, he was drunk. Because he was drunk, he was going in a zigzag fashion. आपको मालूम है, उनके सामने एक व्यक्ति था जो शराब पी करके चल रहा था और टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था। You know, sometimes we are tempted to laugh, हम कई बार ऐसे लोगों को देख करके हम हंसी उड़ा देते हैं And sometimes we will criticize. और कई बार हम उनकी आलोचना भी करते But Moody said, हैं। लेकिन मूडी ने क्या कहा? but for the grace of God, अगर प्रभु का अनुग्रह नहीं होता, I will be also like that. मैं भी उसी व्यक्ति के समान हो जाऊंगा। Why am I like this? मैं आज ऐसा क्यों हूँ? It is the grace of ये God. प्रभु का अनुग्रह है। You know, this is something we always must remember. ये हमेशा हम अपनी इस बात को याद रखें। We have been shown grace. हमारे ऊपर अनुग्रह दिया When गया। we are aware of that, हम जब इसको याद करते हैं, we can always be in good harmony with others. हम दूसरों के साथ में अच्छे संबंध बना सकते हैं। You know, many years ago, I saw a picture. बहुत वर्षों पूर्व मैंने एक तस्वीर देखी थी। A turtle, it was kept on a barbed wire, एक a fence, on the एक fence. कछुए को एक कांटेदार तार के ऊपर रखा गया You know, there is something that the turtle will tell. और वो हमें जो कछुआ है वो हमें कुछ सिखाता है। How can the turtle be there? आप सोचिए, वो एक छोटा सा कछुआ उसके ऊपर कैसे Turtle cannot climb. वो तो कभी वहां चढ़ नहीं सकता। But how did it get there? वहां तक पहुंचा कैसे? Somebody put it there. किसी ने उसको उठाकर वहां रख दिया। No, we are there because God put us there. हम वहां पर हैं, जहां हैं वहां प्रभु ने हमें रख दिया। So all those who were invited for this feast they were there because of the invitation of और grace. जो कोई भी इस भोज में भागी था, उस सबको प्रभु का एक सबको आमंत्रण। दूसरा एक और भाग Is that we must always remember that others are also invited. जब आप इस बात को याद रखते हैं तो ये भी याद रखें कि दूसरों को भी वहां पर Look न्योता दिया into गया। verse 9. 9वें आयत में जरा The देखिए। person who invited you invited the other man. You both were invited. आपको मेजबान ने निमंत्रण भेजा है,
दूसरों को भी उसी मेजबान ने निमंत्रण Sometimes we think we are the only person. कई बार हम तो ये सोचते हैं केवल हम ही हैं यहाँ But पे। God who showed grace to me, प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह तो किया है, showed grace to the other man also. दूसरे के ऊपर भी प्रभु ने ही अनुग्रह किया, And that will make us, humble, isn't it? जो उसके द्वारा हमारे अंदर थोड़ी नम्रता आएगी। So we must always remember there are other people also just like us. हमारे ही समान हमेशा याद रखें दूसरे लोग भी हैं। Look into verse 1 John 1:3. पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 9वां आयत। John says, we are writing this to you. हम ये इसलिए लिख रहे We हैं, are proclaiming this to you. हम इस बात की घोषणा इसलिए कर So रहे that हैं, you will have fellowship with us. तो इससे तुम्हारी सहभागिता हमारे साथ